آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی محترم جناب شفیع انعام میمن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جنید نقی صاحب پریزیڈنٹ، جناب زبیر شاہ صاحب، جناب زاہد سعید صاحب اور یہاں پہ موجود تمام معززین، دانش خان صاحب، السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس کی اجازت، اور یہ میری پہلی یہاں پہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں کاٹی میں ایک دو مرتبہ پہلے بھی یہاں پہ حاضر ہو چکا ہوں. آپ نے جو بھی باتیں کہی ہیں آج، آپ کی ہر بات میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کی ہر چیز کو حکومت کو ویٹنگ دینا چاہیے، اور حکومت جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں آپ کی ہر چیز کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لیتی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ بزنس کمیونٹی کو بہت ہی امپورٹنٹ دیتے ہیں، ان کے مسائل کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ابھی بھی جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے ایوان صدر میں ایک بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی ایک تقریب تھی، اس میں بھی پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے وہاں، تو ان کے بھی ایشوز کے لیے انہوں نے بات کی. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب بھی بزنس کمیونٹی کے مسائل کو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور ریسنٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب بھی آپ لوگوں کے ایک انٹریکشن ہم چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں. چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب وہ بھی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جتنے بھی ہماری تاجر برادری ہے ان کے ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. اور ہماری جتنی بھی کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ کاروباری حضرات کو اور ان کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو فلرش کرنا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اس ملک کے، میں سب آدھے سے بھی بہت زیادہ مسائل 75% تو ہمارے ملک کو ہماری تاجر برادری چلا رہی ہے، اور اس لیے چلا رہی ہے. ایک تو آپ سب سے زیادہ ٹیکس آپ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں تھوڑی بہت جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کی راہ پر لوگ گامزن ہیں، وہ تاجر برادری کے ٹیکس کی وجہ سے. پھر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی تاجر برادری کے ٹیکسز کی وجہ سے. ابھی میں جہاں کاٹی پہ بیٹھا ہوں $4 بلین کی صرف آپ اگر ایکسپورٹ کر رہے ہو تو یہ بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہے آپ کی اکانومی کے لیے. ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں پہ، اور دنیا کی ہر کامیاب قوم اور ملک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اگر سہولت دینی ہے تو وہ تاجر برادری کو دینی ہے. اگر تاجر برادری کو سہولت دی تبھی ان ایمپلائمنٹ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. زور خود بنانا چاہتے ہیں بنائیں، لیکن سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بہترین ماڈل جو ہے وہ دھابی جی اکنامک زون جو ہے وہ آپ کے لیے ہمارے تاجر برادری کے لیے وہ بنایا گیا ہے، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اکنامک زون بننے جا رہا ہے. اور یہ واحد اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک کے ساتھ منسلک ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اب IMF کے بعد ہم مزید اکنامک زون، اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے میں جو ایک بوسٹ آئے. اور یہ اس کے بھی 2 فیز ہیں، فیز 1 اور فیز 2. تو وہ دونوں ہمارے اپرووڈ ہیں، تو دونوں اسی زمرے میں آتے ہیں، تو یہ دونوں ہوں گے. تو اس میں ہم سب نے مل کریں گے. یہ کراچی کے شہریوں کے لیے سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تحفہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے دیا ہے. ظاہر ہے اس میں وقت لگا، وقت درکار ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آگے بھی وہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں سب سے بڑے ایشوز ہمارے انکروچمنٹ کے ہیں. ایکسپریس وے پہ لوگ کہتے ہیں جی کیوں چیزیں پروجیکٹ ہمارے بہت لمبے چلتے ہیں، دیر ہوتی ہے. لیاری ایکسپریس وے کے لیے سیٹلمنٹ ونگ بنانی پڑی، لوگوں کو انکروچرز کو پیسے دے کے ہٹانا پڑا. حالانکہ میری نظر میں کہتا ہوں کہ جی کسی بھی انکروچر کو ₹1 کی بھی پیمنٹ کرنا، اور اس طرح ہم انکریج کرتے ہیں. لیکن اس کو بھی گورنمنٹ نے بلینز آف روپیز دیے کہ جی وہ انکروچر وہاں سے ہٹے تو وہاں پہ وہ ایکسپریس تیار ہو.
तो मलीर एक्सप्रेस में पाकिस्तान पूरे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि हमारे कॉरिडोर सिर्फ सूबे तक नहीं आते, क्योंकि हम टोटली हम पूरे पाकिस्तान को हम कैटर करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। इस वक्त भी जो आपका सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे के जो मिलाने के लिए सड़क है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, ये भी आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। प्रॉपर तरीके से हम उसको एड्रेस करेंगे। जो जाम सादिक ब्रिज वो भी यल्लन बीआरटी का हिस्सा है। अब वो ब्रिज 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 8 महीने पहले कंप्लीट करूं। 8 महीने पहले कंप्लीट करने का मकसद है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो। और यल्लन बीआरटी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम को एक स्टेट ऑफ द आर्ट तोहफा है, जिसमें जब वहां पे बसेस में लोग बैठेंगे तो उसमें शायद इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे भाई उसको सफर करें ना करें, हालांकि इंडस्ट्रियल भाई भी उसको सफर कर सकते हैं, उसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया। लेकिन अगर आपके मजदूर और आपके ईवी बस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से लेकर आई। पाकिस्तान की पहली पिंक बसेस जो है वो भी हमारी हुकूमत जो है उसने अवाम के लिए शुरू की, जो कि खवातीन के लिए शुरू की है। और जब ये शुरू हुई तो मैं आपको बता दूं, ना ही यूके में आज तक कोई खवातीन के लिए बस चलती है, ना यूएसए में चलती है, ना पूरे गल्फ में चलती है। तो जब आपको इसी से कमोबेश किस्म के इशू नजर आएंगे। जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि हम उसको किस तरह पेश करते हैं, आप दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल न्यूज उठा लें, मैं आपको बताऊंगी जी यूके में जो स्ट्रीट क्राइम है ना, उसके मुकाबले में मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा, कोई कंपैरिजन करना ना शुरू करना या रिकॉर्डिंग ना शुरू करते बराए मेहरबानी कर भी तो कोई बात नहीं, हम लोग को आती है। लेकिन इब्तदाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये सेल्स टैक्स जो है, जो एक्साइज टैक्सेशन रिसीव करती है, ये सिर्फ हुकूमत को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ ताजिर बरादरी, कुछ नहीं बहुत ज्यादा ताजिर बरादरी वहां पर गई हुई है। इस वक्त भी कोई 190 अरब रुपए, आपके 190 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, फिर वो डिसीजन नहीं हो पा रहा। और डिसीजन इसलिए नहीं हो पा रहा कि पिटिशनर में मेरे ख्याल से कोई सैकड़ों की तादाद है। जब सैकड़ों की तादाद में पिटिशनर होगा तो सैकड़ों की तादाद में उनके वकील वहां पे आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो ये किस जन्म में काम होगा, किस सदी में काम होगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता। हमने अपने वकीलों को ये गुजारिश की, हुकूमत ने प्राइवेट काउंसिल्स को भी हायर किया कि इसको खत्म करके इसको हमें रिजॉल्व करके दें। लेकिन ये पैसे हुकूमत सिंध को मिलने चाहिए ताकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसे चाहिए। अब ये पैसा हमारे चंद कारोबारी हजरात, जहाँ मैं कारोबारी हजरात को सर का ताज समझता हूँ कि मैं कहता हूँ उनको सर पे बिठाया जाए, हमारे सर का ताज है, वहाँ पे हमारे कुछ चंद कारोबारी हजरात बराए मेहरबानी इससे मुख्तलिफ एसोसिएशंस बात करें। जो आप पूरी दुनिया में चले जाएं, 11 मुल्कों में साइबर नाइफ इस वक्त चल रही है, 11 मुल्कों में। और 11 मुल्कों में जहां जहां साइबर नाइफ चल रही है वहां पर $50,000 से लेकर $1 लाख में इलाज होता है। और दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां पे साइबर नाइफ मुफ्त में इलाज हो रहा है। और वो सिर्फ मुफ्त में इलाज जो है कैंसर का सिर्फ कराची के शहरियों के लिए नहीं, इससे लोग जो है वो भी मुफ्त इलाज कराने के लिए आपके साइबर नाइफ में आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है आपकी सिंध में बनी हुई है स्टेट ऑफ द आर्ट, जहां पे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने काम किया है, क्योंकि ठीक है इंसान के 100 मसले होते हैं, 100 इशू है, लेकिन जो हेल्थ का इशू है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं, क्योंकि जान है तो जान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये बात जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि गाड़ियों जो ज़बून हालत गाड़ियां वो हमारे पास चल रही होती हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट खासतौर पर। और फिर क्या होता है कि जब हाईवे पे देख रहे हो एक्सीडेंट, तो जरूरी नहीं कि सर कोई गलती से एक्सीडेंट हो रहे हो,
पता चला कि गाड़ी की कमानी टूट गई और उसने आगे वाली गाड़ी को मार दिया। अब आगे वाले का कसूर नहीं था बेचारे, उसने भी बड़े तालीम लेके उसने अपने लाइसेंस भी ले लिए, सीट बेल्ट भी पहन लिए, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहा है। पता चला अगली गाड़ी का टायर घूमता घूमता आ रहा है, चलती चलती गाड़ियों के टायर घूमते हुए आ रहे हैं, टायर बस्ट हो गए, कभी जो कमानी टूट गई। तो इस तरह के बातें, तो गाड़ी जब तक फिट नहीं होगी के लिए हमें ड्रास्टिक एक्शन लेने पड़ेंगे, हमें सख्ती करनी पड़ेगी। और अब ट्रैफिक का इशू क्या है, ट्रैफिक में कौन जिम्मेदार है? ट्रैफिक पुलिस वाले, मैं उनको बहुत कम रोल दूंगा, ठीक है, उनमें अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती नहीं है, गलती हम लोग जो यहाँ बैठे हुए ना इस टेबल पे, हमारी गलती है। हमें किसने कहा है कि गाड़ी चलाओ और जब लाल बत्ती जल रही हो तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना हो? उसमें प्रारंभ है, किसने हमें कहा कि जी कि रेड लाइट में हमें सिग्नल तोड़ना है? नाके वाले। आप जाके देखिए, मैं सिर्फ गाड़ियों के शोरूम की बात कर दूं, खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाए, कहीं और चले जाए, शोरूम में उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ दुकान है, उसने जो भी अपनी कारोबारी जो भी हरकत व बरकत करनी है उसे दुकान के अंदर करनी है। दुकान पे गाड़ी खड़ी होगी, फिर दुकान के बाद जो रैंप होगा उस पर गाड़ी खड़ी होगी, फिर 2 लाइन और लगी होंगी, स्ट्रेट गाड़ी खड़ी होगी, आपको सिर्फ सिंगल ट्रैक मिलेगा चलाने के लिए। वो भाई खुदा के बंदे कि आप कैसे 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 कर सकते हो? ये दुनिया के कौन से मुल्क में आपको परमिशन मिलती है कि आप इस तरह वायलेशन करो? हमारे जितने फुटपाथ है उसमें मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है। भाई किसने बोला आपको फुटपाथ तो है जो पेडेस्ट्रियन की है कि जो बंदा पैदल, इसके पास कोई सवारी नहीं, वो पैदल वॉक करे वहां पे, उस जगह पे आपने मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। आप बड़े बड़े चाहे सबर्ब एरिया में चले जाएं, पोश एरियाज में चले जाएं, ट्रैफिक के अपने की, और हम लोगों में हम कुदरती एक सुस्त कौम बन गए माजरत के साथ कि अगर पता था कि गाड़ी वो पार्किंग एरिया बना है वहां पार्क नहीं करेंगे, दुकान के सामने वहीं खड़ी करेंगे। लेकिन एज ए शहरी हम देखेंगे हम कहां पे इस मुआशरे की उस बुराई में हम शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वैसे बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। ईवीएम कॉजवे पे जो है ये मैटर, मैं जल्दी, मेरी आपसे कमिटमेंट है कि आपको उस पर मैं रेस्पॉन्स दूंगा कि आपका ये मसाइल भी हल हो जाए। थैंक यू जी। अपने हालात के साथ हम परिवर्तन थैंक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आज हमारे यहाँ कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में शर्जील इनाम मेमन साहब जो इंफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लाए थे और बड़ी सेहत हासिल उनके साथ जो है वो गुफ्तगू रही। जो चैलेंजेस थे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो मीडिया से रिलेटेड, हमने उनको भी हाईलाइट किया और ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं और अब उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गई, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे कि जी ऑरेंज लाइन और पिंक बसेस जैसे प्रोजेक्ट्स जो कि शहर में, कराची शहर में जो फ़ायदा दे रहे हैं अवामुन्नास को, और मलीर एक्सप्रेसवे जो अगले 2 दिन में उसका इफ्तिताह होना जा रहा है फर्स्ट फेज़ का। इस तरह के जो, और जाम सादिक ब्रिज का जो रीवैम्पिंग हो रही है, नया ब्रिज बन रहा है, ईबीएम कॉजवे पे, कोरंगी कॉजवे पे एक नया जो है वो ब्रिज बनने जा रहा है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट किया गया। उसमें जो मसाइल आगे, येलो लाइन जैसा एक प्रोजेक्ट है उसमें कोई चैलेंजेस आएंगे उनको डिस्कस किया गया और बड़ा अच्छा एक सेशन रहा। और शर्जील इनाम मेमन साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध गवर्नमेंट इस शहर के लिए और सूबे के लिए ला रही है, जिसके लिए हम मशकूर हैं। देखिए, ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, ये सीनियर मिनिस्टर भी हैं और कराची के तमाम मामलात में दर्द भी रखते हैं और समझ भी रखते हैं, और ज़रूर मास ट्रांजिट
कराची का ट्रांसपोर्ट, कराची का कम्युनिकेशन और कंजेशन कराची की आवाम का सबसे बड़ा मसला है, और जिस तरह से मास ट्रांजिट को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, हमने रेड लाइन पे भी शिकायत की तो उन्होंने उसके तमाम मसाइल हमें बताए, और अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। येलो लाइन BRT आ रही है, जाम सादिक अली ब्रिज नया बन रहा है, मलीर एक्सप्रेसवे गेम चेंजर है। ये तमाम चीज़ें कराची के शहरियों को बहुत बेनिफिट पहुंचाएंगी। कराची के शहरियों ने मास ट्रांजिट ना होने की वजह से मोटरसाइकिलें और छोटी गाड़ियां ली और ख़ुद अपनी मदद आपकी बुनियाद पे अपने काम पे पहुंचने लगे। पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मास ट्रांजिट्स मौजूद हैं। इस पे हुकूमत सिंध बहुत अच्छा काम कर रही है और हम समझते हैं उसमें तेज़ी लानी चाहिए ताकि कराची के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और डेफिनेटली मास ट्रांजिट के बाद जब कराची के रोड पे से ट्रैफिक अपने कम होगा तो उसका भी फ़ायदा शहर को पहुंचेगा। उसके अलावा जितने भी कराची के मसाइल हैं, इंडस्ट्री के मसाइल हैं, शहरियों के मसाइल हैं, उन सबको हमने हाईलाइट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते तमाम मसाइल हमारे हल होंगे। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।